Yes, sir. Okay, right. Yes, sir. So in the previous lecture, we have seen the one example on how to define a class and how to define the functions in that class, and how to declare the data members, that is variables, inside a class, and how to access those functions from the main function by creating an object, है ना. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप कैसे कॉल करेंगे, ये एग्जांपल देखा था. नाउ we will discuss about the defining the member functions outside the class using scope resolution operator. So these two dots is also called as scope resolution operator. You know, there is two colons. स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. सो देखिए, इसके पहले एग्जांपल में क्या था कि आपके जो फंक्शंस थे तो वो कैसे थे, वो क्लास के अंदर आपने क्या किए थे, डिफाइन किए थे. नाउ वी कैन डिफाइन द फंक्शंस आउटसाइड द क्लास, है ना. देखिए यहाँ पे एग्जांपल अपन ने लिया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज क्लास ए. सो दिस वाज आवर एग्जांपल. तो यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शंस थे गेट आर एंड फाइंड एरिया, सो दिस फंक्शंस आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास, है ना. क्लास के बॉडी के अंदर ही आपने डिफाइन किए थे. इज इट राइट? ओके. तो सिमिलरली वी कैन डिफाइन दोज फंक्शंस आउटसाइड द क्लास. देखिए यहाँ पे क्लास एंड हुआ है, दिस इज एंड ऑफ द क्लास. So out of the class, we can define those functions but with the help of scope resolution operator. And it's some simple concept. We can define the functions of a class that is outside the class by using scope resolution operator. आपको अगर क्वेश्चन पूछा कि how to define the functions outside the class, so answer is by using scope resolution operator. It's very simple. So this is the syntax to define the functions outside the class by using scope resolution operator. That is return type, class name, then scope resolution operator, function name and parameters. So this is the syntax of function, है ना. Additional क्या है यहाँ पे, just ये जो highlighted part है इसको छोड़ के बाकी तो कॉमन ही है ना. जैसा कि आपका जो फंक्शन का सिंटैक्स था, इंस्टेड ऑफ दिस हाइलाइटेड पार्ट, वो तो वही था ना जो आपका जो फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स था. रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स और उसकी बॉडी. एडिशनल क्या है यहाँ पे, जस्ट क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. आपको ये बताना है यहाँ पे कि ये जो आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है ना. यहाँ पे इसलिए ये मैंडेटरी है, दिस फंक्शन इज बिलोंग टू विच क्लास, है ना. इसलिए यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. दैट्स इट. नेक्स्ट, दिस इज द नोट. Declaring the functions inside a class but definition is outside the class. देखिए definition और declaration में difference ये है कि declaration of a function does not contain the body. देखिए declaration कैसे रहेगा, suppose return type should not be underlined, okay, and function name, that's it. Parameter, and these parameters are optional. As I already told you, these parameters are optional. अगर रिक्वायरमेंट है तो आप पैरामीटर दे सकते हैं, अगर आपको वैल्यू रिसीव करने हैं उस पैरामीटर के अंदर, सो इन दैट केस यू कैन मेंशन द पैरामीटर्स. दिस इज द डिक्लेरेशन, है ना. सेमीकोलन देना पड़ता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और सेमीकोलन. फॉर एग्जांपल void capital void f1,
So white should not be in caps. So it should be in small letters. All the keywords in C and C++ are in small letters. This is the declaration, example of declaration. Return type function name or parameter list if it is available. Declaration does not contain any body, है ना? Curly bracket के अंदर कुछ है क्या? ऐसा है क्या? Curly bracket, open the curly bracket और उसके अंदर कुछ statements है और close the curly bracket. It does not contain, means declaration part, declaration of a function does not contain the body, whereas in the definition of a function contain the body. This is the basic difference. है ना? ये body है. Any statements enclosed within the pair of braces, है ना? Curly brackets, that block we call it as a body. यहाँ पे वही मेंशन किया है, declaring the functions inside a, declaring the functions, है ना? Functions कहाँ पे declare करेंगे? Inside a class, but definition is outside the class. Definition कहाँ पे रहेंगी? Outside the class, with the help of scope resolution operator. So this is the concept of scope resolution operator, to define the functions outside the class, and declaration should be inside the class. See what scope resolution operator. We'll see one example on that. Same program we can write in another way with the help of scope resolution operator. वही example है जो कल देखा था, वही example है. Instead of writing the functions inside the class, देखिए आप वही functions है, उसका जो declaration है वो क्या किया अपन ने उस क्लास के अंदर रखा है ना? जो हाईलाइटेड मैंने किया है गेट आर एंड फाइंड एरिया, तो दैट आर द डिक्लेरेशंस, है ना? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और सेमीकोलन. डिक्लेरेशन क्लास के अंदर रखा है. दिस इज अ क्लास, और क्लास के बाहर मैंने क्या किया है, उसके जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशन मतलब बॉडी, जिसको बॉडी रहेंगी, मींस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स रहेंगे उसको बॉडी बोलेंगे. This is called definition. Get R की definition as per the syntax. Please mute your mic. If you have any query, you can ask. Please mute your mic. That Gaurav Rajguru, please mute your mic. Gaurav नाश्ता करत असन असं वाटतंय. आणि फोन ठेवून दिला साइडला. गौरव, ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास है. सिमिलरली फॉर फाइंड एरिया, और मेन फंक्शन में वही किया है जो आपने लास्ट एग्जांपल में किया था. मेन फंक्शन में क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. इनको कॉल करना है ना मुझे, गेट आर और ये जो फंक्शन है इनको कॉल करना है. फंक्शन को कॉल करने का एक ही तरीका है इन C++ बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके जो रेफरेंस वेरिएबल रहेगा, रेफरेंस वेरिएबल डॉट दैट फंक्शन नेम, है ना? जैसे कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया A1, उसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, और उसके बाद बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी आर कॉलिंग गेट आर एंड फाइंड एरिया. वही आउटपुट आपको मिलेगा. सो वी विल एग्जीक्यूट दिस ऑन टर्बो सी. Turbo C. Any question do you have regarding this scope resolution operator? So this is an example, same example, है ना? Data member, then declaration of functions inside the class, and definition is outside the class by using scope resolution operator.
So we have to execute that program. First of all, we have to compile. So it is already compiled by using Control F9. Sorry, Alter F9 for compilation. So there is no error. It is successfully compiled. Then execute it by using Control F9. So these are the shortcut key. So here you can see there is some interrupt due to this stream. Is it visible? Enter the value of R. So mention any value. So area will be 78.5. So this is our answer. Same answer. डिफरेंस क्या है? जस्ट जो डिक्लेरेशन था वो क्लास के अंदर है और जो फंक्शन का जो डेफिनेशन है मींस बॉडी वो क्लास के बाहर बाय यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. Next concept we will see, that is constructors. So this is very important in the C++ program for a class. देखिए कंस्ट्रक्टर क्या है? हाँ, कंस्ट्रक्टर इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन है ना. जैसे आपके फंक्शंस रहते थे मेंबर फंक्शन, वैसा ही ये फंक्शन मेंबर स्पेशल मेंबर फंक्शन है which is used for initializing an object. ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए मींस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज है तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का काम है. व्हाई इट इज स्पेशल? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन which is used for initializing an object, है ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है इसलिए वो स्पेशल है. नॉर्मल फंक्शन वो तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं करता है ना. सिमिलरली इट्स अ मेंबर फंक्शन. ये एक मेंबर फंक्शन भी है, जैसे आपके नॉर्मल फंक्शंस रहते थे, जैसे आपने अभी मेंशन किया था प्रोग्राम में गेट आर फाइंड एरिया, वैसे ही कंस्ट्रक्टर्स आप लिख सकते हो क्लास के अंदर. बट दिस कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल बिकॉज इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा और इट्स अ मेंबर फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइजिंग द डेटा मेंबर्स. डेटा मेंबर्स जो रहते हैं आपके, है ना, डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास, उसको इनिशियलाइज करना है ना. उनको अगर वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो वी कैन प्रोवाइड द वैल्यूज फॉर दोस डेटा मेंबर्स बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स. तो जैसे कंस्ट्रक्टर अगर आपको लिखना है क्लास के अंदर तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. कंस्ट्रक्टर्स नेम मस्ट बी इक्वल टू द क्लास नेम. इज इट विजिबल टू ऑल दिस कंस्ट्रक्टर साइज? This window, can anyone tell me? Yes, sir, it's visible. Yes, sir. Yes. So constructor name must be equal to the class name. Constructor का नाम कैसे रहेगा? जो क्लास का नाम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा. दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट. जैसे कि फंक्शन में क्या रहेगा? फंक्शन नेम कैन बी एनी नेम, है ना. F1, read, get r, find area, or any name, Sakshi, Gauri, Ashish. You can give any name for a function. Whereas constructor name must be equal to the class name. Constructor name कैसे रहेगा? जो क्लास का नेम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम रहेगा. जैसे क्लास का नेम A है सपोज, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहेगा? A in bracket parameters और उसकी बॉडी. This is the syntax. You can see the syntax of constructor. Class name and its parameters. There is no return type. है ना. These are some differences between constructor and function. Constructor does not have any return type, है ना, return type नहीं है. Whereas function should have a return type. Constructor name must be equal to the class name. लेकिन function का नाम, function name can be any name. ये difference है. और next, constructor is defined in a public section of the class. जो आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे
एज पर द सिंटैक्स वो कैसे रहेगा, पब्लिक सेक्शन में रहेगा। पब्लिक है ना, जो एक्सेस स्पेसिफायर मैंने एक्सप्लेन किए थे, एक्सेस स्पेसिफायर कोलन दैट इज पब्लिक कोलन, और उसके बाद में ये आपका कंस्ट्रक्टर रहेगा। So we will see that example so that you will be able to understand easily. Next, constructor does not have any return type, not even void. Constructor को return type नहीं रहता है ना, as I already told you. Whereas function should have a return type. So these are some characteristics of a constructor and syntax. Next. तो यहाँ पे पैरामीटर मेंशन करना कंपलसरी नहीं है ना, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, मतलब पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। इफ देर इज नो पैरामीटर, देखिए वहां पे टाइप्स है, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स है, तो आपको कंस्ट्रक्टर के टाइप्स बता देता हूँ। जिसके अंदर पैरामीटर नहीं रहेंगे, ओनली ये राउंड ब्रैकेट रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे आप, विदाउट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। If a constructor defined without parameter, that is called default constructor. So there are some types of constructors: default constructor, parameterized constructor, copy constructor. So this is very simple. Default constructor अभी मैंने बताया कि जिनको पैरामीटर नहीं रहता है उस कर्ली ब्रैकेट के, सॉरी राउंड ब्रैकेट के अंदर, उसको बोलेंगे आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इफ देयर इज अ पैरामीटर, अगर वहां पे पैरामीटर रहेंगे इसमें, int x comma int y, या जो भी है पैरामीटर्स, if there is a parameter then it is called parameterized constructor. It's very simple. Copy constructor, so this is a separate topic, we will see in the upcoming lectures. So these are the different types of constructors. Is there any query? Because these questions, these today's questions are based on these two topics: scope resolution operator and constructors, basic knowledge of constructor. Is there any question? So I would like to share the link for quiz and attendance. I hope it is very clear to all, because it is very simple. So you have to solve this quiz within 10 minutes. After that, we will have a discussion of 5 minutes, 5 to 10 minutes. Check the link. Now start your attendance and quiz. After quiz, we'll meet again. We continue for our discussion. So solve it.
हाँ बोल. हेलो. हाँ. हेलो. हेलो. हॅलो सर. हाँ हाँ बोल. सर ते अटेंडन्स मध्ये का नाही रोल नंबरच्या ठिकाणी ऑप्शन 1 म्हणून देऊन येते. रोल नंबर तिथं फिलच नाही करतायत. अच्छा, कोणाचाच नाही झाला का? नाही. No, sir. अच्छा अच्छा. तर एक काम कराल तुम्ही आता. लिंक तुमच्याकडे आहे का? अच्छा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व केले का तुम्ही? हो सर. Yes, sir. वेट वेट. बरोबर आहे. तिथे ते ऑप्शन जे आहे ना, शॉर्ट आन्सर. एक काम कराल तुम्ही आता. तुम्ही क्विज सॉल्व केली आहे, तर थोड्या वेळाने तुम्ही ट्राय करा. ठीक आहे. लिंक तुम्ही म्हणजे शेवटच्या एका मिनिटात तुम्ही अटेंडन्स फिलअप करू शकता. पुन्हा क्विज सॉल्व करा, म्हणजे तुम्हाला अजून याचं बेनिफिट मिळेल. चांगले मार्क्स भेटतील. बघू आपण एक्सप्लेन केल्यानंतर किती मार्क्स भेटतील. ठीक आहे ना? इज इट विजिबल? हो सर. Yes, sir. ठीक आहे. असं करून घेऊ आपण. म्हणजे पहिले क्वेश्चन दाखवून देऊ, क्वेश्चन आन्सर, मग सॉल्व करा. ठीक आहे, मग बघू आपण. This is first question. Which operator is used to access the member function outside the class in C++? कौन सा ऑपरेटर यूज होता है to access the member function outside the class? Scope resolution. Scope resolution operator, that is 2 colons. ठीक है. ये आपको दिमाग में फिट करने के लिए, अगर आपको आउटसाइड द क्लास अगर एक्सेस करना है, मींस आउटसाइड द क्लास अगर मेंशन करना है मेंबर फंक्शंस, so scope resolution operator is used. Second question was, which syntax is correct to define the member function outside the class? मैंने syntax बताया था. तो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ये इनसाइड द क्लास अगर आपको डिफाइन करना है उसके लिए है. आउटसाइड द क्लास के लिए मैंने बताया कि रिटर्न टाइप और उसके साथ आपको क्लास नेम लिखना है और स्कोप रिजल्यूशन ऑपरेटर भी लिखना है. दिस इज एडिशनल. तो दिस वन इज करेक्ट. ये बराबर नहीं, क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप ही नहीं है. ये यहाँ पे क्लास नेम नहीं है. सो परफेक्ट आंसर इज सेकंड वन. Return type, class name, scope resolution operator, and function name, and its body. This is the body. Next, third one. What is constructor? Constructor क्या है? It's a variable. Variable है क्या नहीं है? Pointer है क्या नहीं है? It's a special member function. है ना? Constructor क्या है? Special member function है. It is used to initialize an object. Why it is special? Because it is used to initialize an object, and it is used to initialize the data members of a class. So that's why it is special. Again, why it is special? Because constructor name must be equal to the class name. So that's why it is special. Constructor का नाम और class का नाम सेम रहेगा, उसकी वजह से वो स्पेशल है. बाकी फंक्शन में है क्या कुछ ऐसा स्पेशलिटी नहीं. So that's why it is special. Which of the following gets called when an object is being created? हाँ, देखिए ये मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया नहीं. कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड, है ना. कंस्ट्रक्टर की जो बॉडी रहती है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है, बिकॉज दोज कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे A1,
है ना, सेमीकोलन। जैसे अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो रिस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर है ना, वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिकली। सो which of the following gets called when an object is being created? Constructor. ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ऑटोमेटिकली क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो आंसर इज कंस्ट्रक्टर। लास्ट क्वेश्चन, state whether the following statement about the constructor are true or false. So there are two statements, आपको लिखना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। Constructor should be declared inside the private section. So it's a false because constructor should be declared inside the public section of the class, है ना। मैंने बताया कि पब्लिक सेक्शन के अंदर ही आपको कंस्ट्रक्टर को लिखना है। सेकंड, constructor are invoked automatically when the objects are created. So this is true. Just now I have told you constructors are automatically called. Invoke का मतलब क्या है? Call. Automatically invoked when the object are created. जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड। फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, सॉरी फंक्शन को आपको खुद होकर कॉल करना पड़ेगा। a1 डॉट जो भी है गेट आर, a1 डॉट फाइंड एरिया, ऐसा इसमें लिखा था क्या? कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास। ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिकली। So this is the difference between function and constructor. Constructors are automatically called, whereas functions we have to call explicitly. Explicitly मतलब खुद होके कॉल करना है आपको by using the object, है ना, a1 dot data. So answer is पहला स्टेटमेंट false है, दूसरा true है। False and true. So this one is correct. Third option, false and true. So this is about quiz. You can solve it again by inserting your roll number. Is it necessary to send the link again? Okay, don't worry, I will send it again. The chat box. Solve it again. Is there any query regarding this today's topic? I think it is very, very simple. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Don't worry. Wait. It's a privately I have sent it everyone in the meeting. Now check it. Same link. Solve that quiz again, and I would love to stop this session. Okay. Is there any query? हॅलो सर। हाँ बोलो। सर लिंक म्हणजे हे यू हॅव ऑलरेडी रिस्पॉन्सेस म्हणा। रिस्पॉन्सेस ओके हां एक काम करा ना, रोल नंबर जरी आला नाही तरी ठीक आहे। आता तुमच्याकडे दुसरा ईमेल आयडी आहे का? नो सर। ओके डोंट No, sir. वरी, ठीक आहे इट्स ओके। तुम्ही सॉल्व केलेलं आहे ना, ठीक आहे, तुम्ही नाव वगैरे टाकलंय, रोल नंबर नसला तरी चालतं, बघू आपण यावेळेस, ठीक आहे। सो ठीक आहे। एंड द मीटिंग। सर बोला सर याच्या मागे जे सेशन झालं होतं ना, म्हणजे त्या क्विज मध्ये पण हाच प्रॉब्लेम होता, रोल नंबर नाही एंटर केला आम्ही। अच्छा, त्यात आलं नव्हतं ऑप्शन? म्हणजे म्हणजे जे प्रॉब्लेम याच्यामध्ये येतात ना, तोच प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये पण आला होता। अच्छा ऍक्च्युअली ते म्हणजे क्विज बनवताना थोडंसं हे झालं असेल ऑप्शन। हाँ सर। ठीक आहे काही हरकत नाही, नंतर याच्यानंतर व्यवस्थित। ओके सर। बाय बाय।
थँक्यू.